Shalom. We bring greetings in Jesus' name. शालोम, हम यीशु के नाम से अभिवादन को लाते हैं। We are in the first day of the week, हम सप्ताह के पहले दिन में हैं and the Lord Almighty want to speak to और us. परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। Especially this morning, the Lord want to bring a rhema word for somebody out और there. विशेष रूप से सवेरे के वक्त परमेश्वर किसी तक के वो रमा वचन को लाना चाहते हैं। This person is crying and is in the deep distress. और ये व्यक्ति जो है रो रहे हैं और आप जो है एकदम परेशान है। You are in the crossroads of your life. जीवन के चौराहे पर खड़े हुए You हैं have आप। no clue what to do, what not to do. समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। The Lord want to speak to you this परमेश्वर morning. आपसे बात करना चाहते हैं इस सवेरे के वक्त। It doesn't mean that there is no learning for others who are listening to this message. इसका मतलब ये नहीं है दूसरों के लिए सीखने के लिए कुछ नहीं है इसमें। There is a great learning for each one of us. हम सभी लोग जो है सीख सकते हैं यहाँ से। With that kind of a mindset, I want us to incline our ears to hear what the Lord wants to say और this ऐसी morning. मनस्था के साथ जो है हम चाहते हैं कि आप अपने कानों को लगाएं सुनने के लिए जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं इस सवेरे के I बाद। want us to open our Bibles to Genesis chapter 16. पवित्र शास्त्र को खोलेंगे उत्पत्ति की किताब 16वां अध्याय Let's look at verse 8, 9 and 10. 8वें 9वें और 10वें वाक्य को I'm going to देखेंगे। read for us from the NKJV version. It says, and he said, Hagar, Sarai's maid, where have you come from and where are you growing? She said, I'm fleeing from the presence of my mistress Sarai. Verse 9, the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself under her hands. Verse 10, then the angel said to the Lord, the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendants exceedingly, so that they shall not be counted for multitude. हे सराई की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सराई के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। If you read these verses out of context, you may not be able to get much from here. बिना संदर्भ को समझे अगर आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ नहीं आएगा। But if you get the context well, लेकिन यदि आप संदर्भ को समझ लेते हैं, understand the background, आप बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, you'll be able to get your lessons very तो clearly. यहाँ से जो है सीखों को हम सीख पाएंगे। In chapter 12 of Genesis, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में God called Abraham परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया and he said, leave your country, leave your kindred and go to the land that I'm showing to you. और उन्होंने इब्राहिम से कहा कि अपने देश को छोड़ और अपने लोगों को छोड़ और जिस देश को मैं तुमको बताऊंगा उस देश में तू जा। He said, I'm going to bless you परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीषित and I'm going to करूंगा bring nations out of और you. देश देश तुझसे उत्पन्न होंगे। Abraham did not have a child, इब्राहिम का कोई बच्चा नहीं था, कोई and संतान नहीं थी। God is talking about nations coming out of him. और यहाँ पे यहोवा जो है जाति जाति के बारे में बात कर रहे हैं। And Abraham did what God wanted him to. और इब्राहिम ने किया जो परमेश्वर चाहते थे कि वो करे। He left his country, अपने देश को उन्होंने छोड़ा, left his kindred, अपने लोगों को छोड़ा and began to move towards the land that the Lord showed. और जो जगह परमेश्वर बता रहे थे उस जगह की तरफ वो बढ़ने लगे। He was already 75-year-old, 75 साल उनकी हो चुकी थी and his wife was 65 years और उनकी old. पत्नी जो है 65 वर्ष की थी। They did not have a child. उनकी कोई संतान नहीं They थी। had given up every hope of having a child. संतान होने की आशा को ही उन्होंने त्याग दिया The था promise of God rekindled that hope in them. और परमेश्वर ने जो वादा किया उस वादे की वजह से जो है वो आशा उनमें उत्पन्न हुई, जागरूक हुई। But in the days to come, immediately God did not act on the promise that God made. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वादा किया था संतान का और तुरंत ही उन्होंने पूरा नहीं किया। Chapter 13 came by, 14 happened, nothing happened. 13वें अध्याय में कुछ नहीं हुआ, 14वें अध्याय में कुछ नहीं हुआ, Once again in the chapter 15, फिर एक बार 15वें अध्याय में God shows up. परमेश्वर वहां पे प्रकट होते हैं। God speaks to Abraham परमेश्वर इब्राहिम से बात करते हैं and tells him, और कहते हैं, listen, this is what I'm going to do. सुनो मैं ये करने वाला हूँ, Sarai is going to bear a child. सराय का संतान होगा। In fact, Abraham couldn't believe it, इब्राहिम विश्वास नहीं कर पाए, but finally he believed. लेकिन अंत में उन्होंने विश्वास किया। And then in chapter 16, something happened. और फिर 16वें अध्याय में कुछ होता है। Sarai thought सराय को ऐसा लगता है that she will help God in producing an offspring for Abraham. कि वो परमेश्वर की मदद करेगी इब्राहिम को संतान उत्पन्न होने में। You know, such a pity it is ये कितना
दुर्भाग्य की बात है। Many of us think exactly how Sarai thinks. हम इसे बहुत लोग जो है सराय की तरह ही सोचते हैं। We think that God cannot do it on His own. हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है वो कर नहीं सकते हैं। Unless that we help, He cannot do. That's what we think. जब तक हम उनकी मदद न करें तब तक वो कर नहीं सकते, हम ऐसा सोचते हैं। Mind you, this morning I want to tell you, लेकिन इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God is able, परमेश्वर कर सकते हैं, abundantly able, बहुतायता में कर सकते हैं, exceedingly able, हमारे सोच से बढ़कर कर सकते हैं, more than able to do all that and even greater things. अत्यधिक कर सकते हैं, हमारे सोच से बढ़कर और उससे भी महान बातों को कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So here Sarai acted in haste. तो यहाँ पे सराई जो है जल्दबाजी में काम करती She है proposed to Abraham और वो प्रस्ताव रखती है इब्राहिम के सामने and she said, और कहती है, how about you taking my maid Hagar और मेरी दासी हगर को क्यों नहीं लेते हैं and through her raising an offspring? और उनके जरिए जो उसके जरिए जो है हमारा संतान हो And सकता है। Abraham quickly accepted that offer. और इब्राहिम ने हगार के क्षमा कीजिएगा सराई के प्रस्ताव को स्वीकार लिया And then Hagar conceives. और फिर हगार जो है वो गर्भ धारण कर लेती है। Now the moment Hagar conceived, अब जब हगार गर्भ धारण कर लेती है, Hagar began to despise Sarah. तो हगर जो है वो अपने स्वामिनी के साथ सही व्यवहार नहीं करती है। And when that happened, Sarai was not happy. और जब वो ऐसा करने लगती है तो सराई खुश नहीं होती है। And she went and she blamed Abraham. और आगे चलकर सराई जो है इब्राहिम को दोष लगाती And है she said, और कहती है, it's all because of you. तुम्हारी ही वजह से ये सारा हुआ You're है, not doing what you're supposed to do. तुमको जो करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे Now, हो। Abraham said, इब्राहिम ने कहा, look, she's still your servant. देखो ये हगार जो है हजीरा जो है अभी भी तुम्हारी दासी है, Deal with her however you want to. जिस तरह से तुम व्यवहार करना चाहती हो करो। And the word of God says in NKJV version, और वचन में लिखा हुआ है, Sarai dealt with Hagar harshly. और सराई ने हगर के साथ में जो है कठोरता से व्यवहार किया। When that happened, जब ऐसा हुआ, my brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, Hagar just fled the place. हाजिरा जो है वहां से भाग जाती है And now she is in the wilderness of Shur. और शुर के अभी रेगिस्तान में वो है। She has no clue what has happened with her. उसके साथ क्या हुआ है कोई उसको अंदाजा नहीं है। Where she is going, she has no idea. जहाँ जा रही है उसकी कोई कल्पना नहीं है उसको। She's in the wilderness of Shur. वो शुर के रेगिस्तान में है। That is where the angel of the Lord comes and meets Hagar. वहां पे जो है स्वर्गदूत आकर हगार से मिलते हैं। He asked her a question, Hagar, Sarai's maid, where have you come from and where are you going? सराय की दासी हगार, तू हजीरा, तू कहाँ से आई है और कहाँ को जा रही है? Let me tell you, my brothers and my मैं sisters, आपसे कहूँ भाइयों बहनों, the God that you and I worship is a God who knows our end from the beginning and beginning from the end. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारे अंत को शुरुआत से जानते हैं और हमारे शुरुआत को अंत से जानते It's हैं। quite possible that is exactly the question that the Lord, that you may be asked this morning. और हो सकता है ये प्रश्न आपने पूछा है सवेरे के वक्त, You know, where are you coming from and where are you going? क्षमा कीजिए, आपसे ये प्रश्न जो है परमेश्वर पूछ रहे हैं इस सवेरे के वक्त कि कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। You know, just the way that Hagar was annoyed with her mistress. और जिस रीति से हगार जो है वो अपने स्वामिनी से गुस्सा थी, As Hagar was frustrated, और पूरी रीति से जो है फ्रस्ट्रेटेड थी, she was feeling helpless, और वो उसको जो है बिल्कुल ही मतलब ठीक नहीं लग रहा था, full of anger and inside she was broken. और उसमें जो है बहुत ज्यादा गुस्सा था और अंदर टूटी हुई थी। It's quite possible even you are experiencing the same things. ये हो सकता है कि आप भी ऐसी बातों का अनुभव कर रहे हैं। You have no clue where you're coming from. आपको कोई अंदाजा नहीं है कहाँ से आ रहे You हैं have no आप, clue where you're going. कहाँ जा रहे हैं कोई अंदाजा नहीं You है। too may be dealt very harshly by somebody. और हो सकता है कि आपके साथ में भी कठोर व्यवहार हुआ होगा And you are broken inside, और आप अंदर में ही टूट गए हैं। full of anger and bitterness and frustration. गुस्सा है आप में, कड़वाहट है और फ्रस्ट्रेशन है। In the wilderness, just the way that Hagar was. रेगिस्तान में जिस तरह से हजीरा थी। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now, if you're that kind of a person, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, listen to what the angel of the Lord said. जो दूत कहते हैं उसको सुन लीजिएगा। Verse 9 it says, and the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself under her hand. यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। This morning, the Lord is inspiring me to tell you this. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर प्रेरणा देते हैं कि मैं आपसे ये कहूँ,
Return to where you're coming from. कहाँ से आप आ रहे हैं वहां पे वापस जाइएगा, Submit yourself. अपने आप को वश में कीजिएगा। I do not know who has hurt you, हम नहीं जानते किसने आपको चोट पहुंचाई what है, has brought this और bitterness, क्यों ये कड़वाहट है, why you're angry and frustrated. क्यों आप गुस्सा है और फ्रस्ट्रेटेड है। Return to wherever that you're coming from. जहां से आप आ रहे हैं वहां पे वापस लौट जाइएगा। Most importantly, submit yourself. और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो है वश में आ When जाइएगा। the angel of the Lord said these words to Hagar, it is not that angel of the Lord did not know how hard a thing it was. और जब ये स्वर्गदूत ने ये बातें हगार से या हजीरा से कहा, तो स्वर्गदूत जानते थे कि ये बहुत ही कठिन बातें हैं करने के लिए। I know the Lord knows that how hard it is to go back for you to resubmit yourself to the person who caused so much of pain to you. और परमेश्वर जानते हैं, मैं जानता हूँ कठिन है कि आप जो है पुनः अपने आप को समर्पित करें, उस व्यक्ति के वश में आ जाए जो आपको कष्ट दे रहे हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। The Lord knew what is about to happen. परमेश्वर जानते थे कि क्या होने वाला है। He had great plans for Hagar. हाँ, हगार के लिए, हजीरा के लिए उनकी महान If you योजना है। read the chapter, I mean the same chapter a little bit down, अगर आप यही अध्याय को आगे पढ़ते हैं, further verses, आगे के वाक्यों and में, even chapter 17 for that और matter, 17वां अध्याय भी, you will see how the Lord established Hagar and the descendants who came of her. और हम देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हाजिरा को स्थापित किया, और जो वंश जो है आया, वो वंश को कैसे उन्होंने बनाया रखा। Hagar had no idea who was in her womb. और हागर को कोई, हाजिरा को कोई कल्पना नहीं थी कि उसकी कोख में कौन है। Hagar had no idea where she was going. कहाँ जा रही है कोई कल्पना नहीं थी। Hagar had no idea what would become of her. उसका क्या होगा ये भी कोई अंदाजा नहीं था। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति You हो। too have no idea. आपको भी कोई अंदाजा Where नहीं you है, are coming, where you are going, you have no idea. कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई कल्पना नहीं है। But the Lord knows you. लेकिन परमेश्वर आपको जानते The हैं। Lord who knew Hagar knows you. परमेश्वर जो हगार को जानते थे, हजीरा को जानते थे, परमेश्वर आपको जानते हैं। The Lord said to her further, परमेश्वर ने आगे चलकर हजीरा से I'm कहा, going to bless you. Your descendants are going to be a great nations. मैं तुमको आशीष दूंगा और मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा और बहुतायत जो है तुम्हारा भाग होगा। You know, even He's speaking the same words concerning you. और वही बातों को आपसे वो कह रहे The हैं। Lord is looking to bless you. परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको आशीषित The करें। Lord is looking to lift you up. परमेश्वर आपको उठाना चाहते The हैं। Lord is looking to establish your feet. परमेश्वर आपके पांव को स्थापित करना चाहते हैं। But for that to happen, लेकिन ऐसा अगर होना हो, you have to go through a painful process. तो जरूरी है कि आप इस दर्द भरे क्रिया से गुजरे। And that painful process is submitting oneself to those ones who is hurting you. और ये दर्दनाक क्रिया ये है कि आप जो है उन लोगों के वश में आ जाए जो आपको आपके साथ में कठोर है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, when you go back, जब आप वापस जाएंगे, the Lord promises that He will grant you the grace. परमेश्वर ये वादा आपसे करते हैं कि वो आपको अनुग्रह प्रदान करेंगे। The Lord promises that He will be with you. परमेश्वर ये वादा करते हैं कि वो आपके साथ में The रहेंगे। Lord promises that He will not leave you nor forsake you. परमेश्वर ये वादा करते हैं कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं त्यागेंगे। He's just watching you what you're doing. ये आप परमेश्वर आप पर नजर रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं। Listen to what He's saying जो वो कह रहे हैं उसको सुनिएगा, and do exactly what He's told you to. और जो वो कहते हैं उन बातों को कीजिएगा। To reap the rich dividends of manifold blessings in the days to come. अगर आप चाहते हैं कि आप अनगिनत आशीषों का अनुभव करें आने वाले दिनों में, With this in mind and heart, ये बातों को अपने मन में और हृदय में रखते I हुए want us to go into the day and the week. हम दिन में जाएंगे, सप्ताह में जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. I'm sure that each one of us have been blessed through this particular message. और मैं विश्वास रखता हूँ कि हम सभी लोग आशीषित हुए हैं संदेश के जरिए। There is a learning for each one of us. हम हर एक के लिए सीख है यहाँ पे। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, You have an awesome day आपका दिन बड़ा and an अद्भुत जाए amazing week. और आपका सप्ताह बड़ा अद्भुत जाए।